now we are at the fag end of our first chapter, that is structure of atom. So बच्चे as I told you कि आज अपन ने quantum numbers and rules of filling electrons the problem solve करनी है। So जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ assignment ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ in text in class questions ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ first question ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। So I hope कि you all are well revised with the last three chapters starting from last three lectures starting from quantum numbers. So all the quantum numbers, all the three rules of filling of electrons, basically 6 rules ਹੁੰਦੇ ਆ but ਆਪਾਂ main 3 ਕਹਿੰਦੇ ਆ last ਵਾਲੇ। ਤਾਂ I hope कि you are well revised with that ਤੇ ਉसी ਦੇ base ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ assignment solve ਕਰਨੀ ਹੈ। So have a look at question number 1. The maximum number of electrons that can have principal quantum number is equal to 3 and spin quantum number is equal to plus half is। बच्चे ਇੱਥੇ confuse ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ spin quantum number ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ it is written as S, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ books ਦੇ ਵਿੱਚ MS ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। M stands for magnetic quantum number and MS stands for spin quantum number। So देखो, so the maximum number of electrons that can have principal quantum number is equal to 3 and spin quantum number is equal to plus half। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ 3 ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ plus half ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ 3 and S is equal to plus half। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਾਈਨ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n is equal to 3 यानी कि अपने पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है शेल नंबर है वो 3 है। ठीक है, सो वी नो देखो बच्चे हुन फर्स्ट 2 शेल्स है ਜਿਹੜੇ फर्स्ट ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ n3 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सब शेल्स कितने पॉसिबल है 3s 3p 3d। सो ਇਹ ਤਿੰਨ सब शेल्स ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ n is equal to 3 ਹੈ। getting now ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ऑर्बिटल है, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ऑर्बिटल्स है और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ऑर्बिटल्स है। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਸੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 and similarly ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ n ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਟੋਟਲ 18 ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स है। 18 ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਫ ਹੋਣਗੇ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਵਾਲੇ और हाफ होंगे प्लस हाफ वाले। सो देयर आर टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स। सो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैव n is equal to 3 and s is equal to plus half। so this is your answer। so अपने पास किसी भी एटम च टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिन्हां दा n is equal to 3 है and s is equal to plus half है। एक चीज होर सुनो बच्चे, हुण इस दे नाल एक वेरिएबल सुनो। सो ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੈਨ ਹੈਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸ let it be we shall take the example of bromine। so let us take the example of bromine नहीं चलो chlorine। ठीक है, so we'll take the example of chlorine। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਕਿ how many electrons in chlorine can have। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ have a look at the question very nicely। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਟਾਈਪਸ ਚ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। सेकेंड टाइप how many electrons in chlorine have, चलो पहला लिखो can have, how many electrons in chlorine can have n is equal to 3 and s is equal to plus half। so देखो बच्चे
सो मैं लेट इट बी, दिस इज फर्स्ट द बी पार्ट। क्लोरीन द एटॉमिक नंबर इज बच्चे 17। मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सो इन्हों का तो बच्चे कोई रोल ही नहीं है क्योंकि इन्होंने तो n इज इक्वल टू 2 है या n इज इक्वल टू 1 है। सो n इज इक्वल टू 3 किहदे लई है? एक इहदे लई, एक इहदे लई। सो मैं बना लिया, सो s 2 है, सो p 1 2 3 4 5। हुण देखो बच्चे ध्यान नाल, जो आपां ने इलेक्ट्रॉन आह वाला फिल किया है, आपां ने की किया सी कि कन्वेंशनली आपां इदां फिल करते हैं, ठीक है। ए प्लस हाफ भी हो सकता है ते माइनस हाफ भी हो सकता है। गेटिंग अ पॉइंट? सो अगर आपां नूं क्वेश्चन ये पूछे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन कैन हैव n इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू प्लस हाफ, तो अपना आंसर कितना होएगा? 1 2 3। ये हो भी सकता है, सो कैन हैव 4। सो अपना आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं बच्चे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हुण यही क्वेश्चन नु अगर मैं मोल्ड करके सोनू कहता, सो फर्स्ट द सी पार्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन हैव, मैं कैन हटाता, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन हैव n इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू प्लस हाफ, तो आप सिर्फ ये 3 काउंट करांगे क्योंकि ये 3 की तो गारंटी है ना बच्चे कि s इज इक्वल टू प्लस हाफ है। 1 2 3 ये तो अपन श्योर ही नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, ठीक है, तो आप 4 लिखांगे। और अगर आता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन हैव n इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू प्लस हाफ, तो अपना आंसर आएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो गॉट इट एवरीवन बच्चे? सो ये क्वेश्चन अपन इस 3 फॉर्म्स च आ सकता है ते अपन ने बड़े ध्यान नाल क्वेश्चन नु सॉल्व करना है, ठीक है ना। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे। An electron is present in 4D subshell. Give all the possible values of 4 quantum numbers. So आओ बच्चे। So the question is, एक इलेक्ट्रॉन है अपने कोल जो अपने कोल 4D सबशेल च है। So question number 2, an electron is present in 4D subshell. So give all the possible values of 4 quantum numbers. So बच्चे आपां नूं पता है कि 4D दे विच there are 5 orbitals। तो जेड़ा अपने इलेक्ट्रॉन दी गल हो रही है वो इन्हां 5 ऑर्बिटल्स दे विच किते भी हो सकता है एंड उसकी स्पिन कोई भी हो सकती है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। आपां उस इलेक्ट्रॉन दे चारों दे चारों क्वांटम नंबर्स दी वैल्यूज लिखनी है। सो उसदे लिए बच्चे n कितना होएगा? ऑफ कोर्स 4। L कितना होएगा D लिए बच्चे? 2। M 5 की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 एंड स्पिन क्वांटम नंबर या तो प्लस हाफ तो या फिर माइनस हाफ। गेटिंग अ पॉइंट? सो दीज आर योर 4 वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4D सबशेल, ठीक है। सो जो 4D सबशेल दे विच इलेक्ट्रॉन होएगा ओदियां आ 4 क्वांटम नंबर्स दियां वैल्यूज बनदियां। डन? नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 in your in class questions. So question number 3 बच्चे, using the SPD notation describe the orbital with the following quantum numbers. So अपन क्वांटम नंबर्स देते हैं और अपन ने आंसर दसना है कि वो इलेक्ट्रॉन केड़े ऑर्बिटल दे विच है। सो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन देखो, उन्होंने क्या है n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0। सो बच्चे ए फर्स्ट शेल की गल हो रही है, L इज इक्वल टू 0 S। सो जेडे ऑर्बिटल की गल हो रही है वो केड़े सबशेल नु बिलोंग करता है? 1s। इजी। नाउ सेकंड इज B ऑप्शन, n इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 0। सो एक ही हो गया बच्चे 2s सबशेल या ऑर्बिटल। C n इज इक्वल टू 3 and L is equal to 1. So बच्चे they are talking about 3 and L is equal to P.
सॉरी L इज इक्वल टू 1 तो P सबशेल। सो ਜਿਹੜੇ ऑर्बिटल की गल हो रही है वो 3p ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ऑर्बिटल है, ठीक है। नाउ n is equal to 4, so last option, sorry D, last part, n is equal to 4 and L is equal to 3, so 4 L is equal to 3 ਦਾ F। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ऑर्बिटल ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 4f ਦੇ 7 ऑर्बिटल्स ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ऑर्बिटल ਹੋਏਗਾ। फाइन, सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय कि एसपीडी नोटेशन ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चे द क्वेश्चन नंबर 4 says why is there no, so why is there no a 2D or 3f ऑर्बिटल। ਇਹ क्वेश्चन ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ऑर्बिटल्स पॉसिबल है ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2s 3f 3p 2d ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ऑर्बिटल्स ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब this question is solved like this। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 2 3 4, l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 1 2 3। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ n is equal to 1 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1s ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ l ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0। ਅਗਰ n is equal to 2 ਹੋਏਗਾ तो ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਹੋਣਗੇ 2s 2p, l is equal to 0 l is equal to 1। ਅਗਰ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੈਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ 3s 3p 3d, l is equal to 0 1 and 2। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ n is equal to 1 2 3 and so on ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਸ਼ੈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ n-1 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 0 1 2। 1 ਦੀ ਬਜਾਏ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 3 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਹੈ ਤਾਂ 0 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। यानी कि जो L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, जो L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ n ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਸੌਰੀ 2s 3f 3p 2d। सो यानी कि आप लिखेंगे कि सिंस n is always greater than l, n कदे भी बच्चे l तो घट नहीं हो सकता बराबर नहीं हो सकता। सो देखो n can never be equal to l and n can never be less than l। सो n कदे भी l तो घट नहीं हो सकता या बराबर नहीं हो सकता। n दी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन l क्योंकि n 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ l 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2s ਲਈ n is equal to ਬੱਚੇ 2s ਲਈ n is equal to 2 and l is equal to 0। 3f ਲਈ n is equal to 3 and l is equal to, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ f ਲਈ l ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3। हाँ जी, now 3p ਲਈ n is equal to 3 and l is equal to 1, n is equal to 2 and l is also equal to 2। so condition की है n should be greater than l, तो n is greater than l exist करेगा, n is equal to l नहीं exist करेगा, n is greater than l exist करूंगा, n is equal to l तो exist नहीं करूंगा। तो अपन को आंसर मिल गया। आप इथे लिखेंगे सिंस n is always greater than l, ठीक है, बट फॉर सपोज मैं 2d सॉल्व कर रहे हैं बट फॉर 2d सबशेल n is equal to l, therefore it does not exist। ठीक है, so this is how to solve this question। सो इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ l ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਡਨ। ਨਾਓ ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਬੱਚੇ।
Question number 5 now. So the question number 5 says, deduce the possible set of 4 quantum numbers when n is equal to 2. So easy question है बच्चे, अपन कह रहे हैं कि n दी वैल्यू इज 2, तो दसो वेरियस क्वांटम नंबर्स दियां वैल्यूज की होंगी, 4 क्वांटम नंबर्स है ना। सो देखो अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l कितना हो सकता बच्चे, तो 2s या 2p। ये रहेगा पॉइंट, n दे विच 2 सबशेल्स होंगे, अगर n 2 है दूसरे शेल दे विच 2 सबशेल्स होंगे 2s एंड 2p। सो l इज इक्वल टू 0 या फिर 1। 2s ਲਈ 0, 2p ਲਈ 1। ये रहेगा पॉइंट। नाउ कम ऑन टू m दिया वैल्यूज, अगर 2s इज 0 तो m कितना हो गया 0, एक कोई ऑर्बिटल होंगे, और अगर ये 1 है तो कितना हो गया -1 0 +1। सो आप 0 ਨੂੰ ਇਦਾਂ भी लिख सकते हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इंक्लूड हो गया, सो मैं इसਨੂੰ इरेज भी कर सकता हूं क्योंकि m दिया वैल्यूज -1 0 या +1 होंगी, और 0 चाहे एवली है चाहे एवली है, डजंट मैटर, है ना। नाउ s +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है, चाहे इन्होंने इदां लिख दिया करो और चाहे इदां लिख दिया करो। Done. So these are your 4 sets of quantum numbers that are possible if n is equal to 2 बच्चे। Done. Now come on to question number 6. So बच्चे come on to question number 6 now. It says how many electrons in an atom with atomic number 105 can have n plus l is equal to 8। देखो बच्चे क्वेश्चन की है, वो कहते कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर इज 105, किन्ने इलेक्ट्रॉन्स दी n+l दी वैल्यू 8 हो सकती है। सो देखो बच्चे पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 105। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾर्ट बनाया सी उसके अकॉर्डिंग पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सो देखो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट चार्ट, है ना। अपन कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 and 6p6 fine। 7s2 5f14। आप एक बार काउंट कर लिए कि आप कितनी फिलिंग तक पहुंच गए। 2 + 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 54 56 70 80 86 88 88 + 14 कितना हो गया बच्चे, 88 + 14 102। सो अपने को 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे। सो 6d ਦੇ ਵਿੱਚ गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दिस इज फाइन बच्चे, ठीक है। हुण आपां ने ये चेक करना है कि किन्ने इलेक्ट्रॉन्स ਲਈ n+l = 8 है। डन। पहला तुसी ये चेक करो कि n+l 8 ਦੇ बराबर कदों होएगा। सो देखो बच्चे, देखो इसका सब तो ईजी वे दसदा मैं सुनो। n+l = 8 तो 8 कदों हो सकता है, 8 + 0 = 8। जो n होएगा 8, l होएगा 0 तो 8 हो गया। एक कदों होएगा 8s ਲਈ। ये रहेगा पॉइंट, ये समझ आ गया। नाउ 7 + 1 = 8 यानी कि 7p सबशेल ਲਈ। 6 + 2 = 8 यानी कि 6d सबशेल ਲਈ। 5 + 3 = 8 यानी कि 5f सबशेल ਲਈ। उस तो बाद 4 + 4 या उस तो बाद पॉसिबल ही नहीं है। देखो बच्चे हुन
n plus l 8 कदों हो सकता है? 3 plus 5, 2 plus 6, 1 plus 7 एंड 0 plus 8 ऐसा ही होगा ना। तो यह चीज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि n की वैल्यू l नालों हमेशा ज्यादा होनी चाहिए है, सेम भी नहीं हो सकती, घट भी नहीं हो सकती। सो अपने को आही 4 पॉसिबिलिटीज है। समझ आ गई गल? सो नाउ डन। रजे बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया ना कि n plus l 8 यही 4 केसेस हो सकते हैं, बाकी केसेस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि n है जिहड़ा वो l तो हमेशा ज्यादा होता है। हुण चेक करो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्हां दे विच है। सो देखो 8 एस ते तां आपां हले पहुंचे ही नहीं बच्चे, ठीक है। दूसरा 7p, 7p भी हले नहीं आया, 6d तो बाद हुंदा है। थर्ड 6d, 6d दे विच कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। सो 3 प्लस 5f दे विच कितने है? 14। सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? सो देयर आर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स जिन्हां लई n plus l 105 एटॉमिक नंबर लई कितना होएगा? कितना? 8। गड़ेगा पॉइंट। सो अपने को टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है जिन्हां लई n plus l 8 होएगा एक एलिमेंट लई जिसका एटॉमिक नंबर इज 105। ये गड़ेगा पॉइंट, ठीक है। अच्छा हुण अगेन जिवें आपां ने फर्स्ट क्वेश्चन च पार्ट्स कीते सी, हुण अगर आपां नूं आ चीज ना मैंशन होवे, बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुकिया इसलिए मैं रेज कर रहे हैं। हुण सपोज अगर ये ना दिता हुंदा ते आपां नूं सिंपली पुछया हुंदा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम जिन्हां लई n plus l is equal to 8 है, तो फिर आपां ये सारे काउंट करांगे। s च कितने जा सकते हैं मैक्सिमम? 2, p च 6, d च 10, f च 14। सो टोटल कितना हो गया? 32। फिर अपना आंसर कितना होना सी? 32, क्योंकि 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी एटम च मैक्सिमम तो मैक्सिमम जिन्ना च n plus l is equal to 8 आएगा। बट इस एटम के केस च जिहदा एटॉमिक नंबर 105 है उत्थे 17, क्योंकि ओदे केस च ਇਹਦੇ ਚ 14 ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਸਟ 3 ਹੈ, 7p ਤੇ 8s ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन नहीं है, ठीक है ना। नाउ come on to question number 7. Calculate the total number of m values for n is equal to 4. ਹੁਣ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵੇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ सो देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ m वैल्यूज फॉर n इज इक्वल टू 4। सो इसके दो वेज है बच्चे, एक लेंथी वे एक छोटा वे, बट दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है, मतलब जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगता ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। देखो पहला वे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लेंथी वे करवाना है। देखो टोटल नंबर ऑफ m वैल्यूज अपने को चौथे शैल दे विच m की हुंदा बच्चे ऑर्बिटल्स। सो देखो n दे विच अपने को 4 सब शेल्स होंगे, 4s 4p 4d एंड 4f। 4s दे विच इको ऑर्बिटल, 4p दे विच 3 ऑर्बिटल्स, 4d दे विच 5 ऑर्बिटल्स एंड 4f दे विच 7 ऑर्बिटल्स। फाइन। इस दे लिए m इज इक्वल टू 0, -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। सो m दियां बच्चे टोटल वैल्यूज मेरे को कितनी आ गई? 1 ते 3 4 ते 5 9 एंड +7 इज इक्वल टू 16। सो आंसर कितना हो गया मेरे को? टोटल m वैल्यूज कितनी आ गई बच्चे? 16। दूसरा हुण ये फर्स्ट वे आउट है, तुसीं इदां कर सकते हो कि टोटल वैल्यूज ऑफ m 1 +3 +5 +7 इज इक्वल टू 16 आंसर, ठीक है। नाउ हुण छोटा वे बिल्कुल सिंपल जा ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ m ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन, ਨੰਬਰ ਆਫ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट, एक शैल दे विच कितने ऑर्बिटल ਹੁੰਦੇ ਆ?
अगर नहीं याद तो अपने नोट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ चेक करियो। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल ते इन ए सबशेल। सबशेल च किन्ने सी 2l+1, शेल च किन्ने सी n ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ n ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ सबशेल ਦੀ, ठीक है। तो n कितना है 4, 4 का स्क्वायर करो कितना आंसर आ गया 16। इजी। सो सिंपली वैल्यू पुट करो 4 स्क्वायर, सो आंसर इज 16। सो ये दूसरा वे है, छोटा वे, मार्क्स ओनली मिलेंगे बच्चे, चाहे आए सॉल्व करो चाहे आए सॉल्व करो। गेटिंग अ पॉइंट? सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। डन। So now come on to question number 8. Question number 8 says, what fraction of the total number of electrons is in p subshells in beryllium, magnesium, iron? So बच्चे देखो, मतलब क्वेश्चन की पूछ रहे हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम या आयरन किसी भी एलिमेंट जिन्ने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स है किन्ने परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल्स है, ठीक है ना। सो देखो, सो पहला मैं समझू बेरिलियम सॉल्व करके देना है। So beryllium atomic number is 4, configuration 1s2 2s2। So बच्चे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, चारों दे चारों s सबशेल च है, p दे विच कोई भी नहीं है। सो आपका आंसर कितना आ गया 0%। सेकंड, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 2, 6 ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 6 ਹੈਗੇ ਆ p ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਟੋਟਲ 12 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਰ ਇਨ ਦ p सबशेल। सो हाफ यानी कि 50% इलेक्ट्रॉन्स आर इन p सबशेल्स। आयरन बच्चे, सो थर्ड ऑप्शन आयरन, एटॉमिक नंबर इज 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d6। सो आंसर कितना आएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 26 है, p दे विच कितने हैं 6 + 6 12। सो 12 by 26 into 100। सो सॉल्व करके जितना भी आ गया दैट परसेंटेज इज इन p सबशेल्स। इजी, डन। नाउ हो गया बच्चे। सो कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। हाउ मेनी शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम विद एटॉमिक नंबर 11 एंड एटॉमिक मास 23? सो देखो बच्चे, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 वो कहते कि अपने पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर इज 11 एंड मास नंबर इज 23। वैसे आपको पता है कि केड़ा एटम है सोडियम, बट चलो उन्होंने आपको नेम नहीं दिता, तब कंसीडर इज एट एक्स। वो कहते कि इसके विच किन्ने शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स ते इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है किन्ने है 11। इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 11। उन किन्ने शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स है। सो देखो बच्चे, पहला आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखांगे 1s2 2s2 2p6 3s1। सो इस दे विच शेल्स किन्ने हैं बच्चे, किन्ने शेल्स यूज कर ले मैं 1 2 3। सो मैं 3 शेल यूज कर ले। सबशेल्स मैं किन्ने यूज किए बच्चे 1 2 3 4। सो मैं 4 सबशेल्स यूज कर ले। ऑर्बिटल्स, सो ऑर्बिटल्स में कितने यूज किए s दे विच 1, s दे विच 1, p दे विच 10 और s दे विच 1। सो 1 + 1 + 3 + 1। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड आर 6 ऑर्बिटल्स। फाइन। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे। इजी नाउ। So come on to question number 10. Have a look at question number 10 now.
An atom has 2k, 8l and 2m electrons. So पहले 10 shells ਦੇ ਵਿੱਚ electrons ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. So electronic configuration ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. This is your question number 10. 2, 8, 2. यानी कि total electrons कितने हैं मेरे पास? 12. So basically किसकी गल हो रही है? Magnesium. Find the total number of protons, principal quantum number, सबशेल्स और सब लेवल्स, ऑर्बिट्स, बेसिकली ऑर्बिट्स नहीं ऑर्बिटल्स आऊगा, पी इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेलेंसी ऑफ द एटम एंड ऑर्बिटल्स. सो बच्चे देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो एटॉमिक नंबर 12 है, तब प्रोटॉन्स कितने आए इसके कोल? सो जिन्ना एटॉमिक नंबर हुंदा है उन्ने ही प्रोटॉन्स हुंदे ने, यानी कि 12. नंबर 2. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो बच्चे एक ही हुंदा है शेल्स. आप शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स इकट्ठे ही सॉल्व कर लेंगे हैं. सो पहला कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ठीक है. सो n या ऑर्बिट्स. सो ऑर्बिट्स अपन ने कितने यूज कर ले बच्चे? 1, 2 एंड 3. सब शेल्स कितने यूज कर ले? 1, 2, 3 एंड 4. बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह. ऑर्बिटल्स कितने यूज किते? ओ नहीं, 1 ते 1 2 ते 3 5 ते 1 6. ठीक है, डन. हाँ जी, हुण इन्होंने की पूछा अपन नू? टोटल नंबर ऑफ paired and unpaired electrons. So बच्चे paired electrons is equal to paired electrons का मतलब समझ ना कि कितने electrons paired है, मतलब जोड़े अंश प्रेजेंट है और कितने नहीं paired. So देखो मैंने इरेज कर रहे हैं एक बार ताकि सानू paired unpaired पता लग जाए. So this is 1 2, this is also 2. ये भी बच्चे सारे पेयर्ड है, 1 2 3 4 5 एंड 6. सो ऑल आर पेयर्ड. देखो सारे जोड़े अंश प्रेजेंट है. सो ऑल 12 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जीरो, कोई भी इलेक्ट्रॉन कल्ला प्रेजेंट नहीं है. देखो हम एक क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, मैं जस्ट समझा रहे हैं. जिवें पिछले क्वेश्चन च अपना एटॉमिक नंबर 11 सी, तो उत्थे कितना आया सीगा? देखो 3s1, तो इत्थे एक इलेक्ट्रॉन सी. तो हुण अगर इसलिए अपन नूं पुछया हुंदा तो अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आउंदे? 1 2 3 4 5. 5 2s आर 10. फिर अपना आंसर होना सी 10. ते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते? 1, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, एक कल्ला प्रेजेंट है. किहड़ेगा पॉइंट? सो अगर अपन नूं इत्थे हुंदा एटॉमिक नंबर 11, फिर अपना आंसर आ जांदा. बट 12 है तो ए भी पेयर्ड है. सो ऑल 12 आर पेयर्ड ते अनपेयर्ड कितने हैं? 0. डन. ठीक है. सो दिस इज हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे. सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 सेज what is the maximum number of electrons that may be present in all the atomic orbitals with principal quantum number 3 and azimuthal quantum number 2. So 11th क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है. जिन्ने भी ऑर्बिटल्स दे ए क्वांटम नंबर्स है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल सारे मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो बच्चे पहला तो ये देखो कि केड़ा सबशेल है? 3d. ठीक है. वी नो कि 3d ਦੇ ਵਿੱਚ कितने ऑर्बिटल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 5. and all 5 can have maximum to maximum कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2. एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to 10. So 3d ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ਆਪਾਂ ਨੂੰ वैसे भी पता है कि एक d सबशेल ਦੇ ਵਿੱਚ कितने इलेक्ट्रॉन्स ਹੁੰਦੇ हैं बच्चे? 10. सो ਜਿਹੜੇ 10 इलेक्ट्रॉन्स है इन्हां ਲਈ n ਦੀ वैल्यू 3 है और l ਦੀ वैल्यू 2 है. नाउ come on to question number 12 now. For a particular atom, the maximum value of m obtained is +2.
What are the values of n, l and m? So देखो बच्चे, so question number 12, वो कहते कि maximum value of m plus 2 है, ठीक है। तो दसो n, l and m दियां किहड़ियां वैल्यूज पॉसिबल है बच्चे, ठीक है ना। फॉर अ पर्टिकुलर एटम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इज +2, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, l एंड m? सो देखो, सो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल अपने पास m दी +2 है, तो +2 कदों होएगी? जो अपने कोल 5 ऑर्बिटल्स होंगे, a +2, a +1, a 0, a -1, a -2, डन। सो यानी कि m दी वैल्यू कितनी होएगी? 2, ठीक है ना। सॉरी, l दी वैल्यू कितनी होएगी? 2, और m दी वैल्यूज -2, -1, 0, +1, +2। यही होता है ना कि m इज इक्वल टू -l तो लेके 0, 0 तो +l। सो l आ गया 2 और m आ गया -2 तो +2, ठीक है। हुण अगर l 2 है बच्चे, तो n कितना हो सकता है? हाँ जी, l अगर 2 है तो n कितना होएगा? मिनिमम 3। क्यों? क्योंकि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू ऑल दीज। क्लियर? ठीक है। नाउ बच्चे समझ आ गया? ਆਪਾਂ ਨੂੰ m ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਲੀਆਂ। ਮੈਕਸਿਮਮ +2 ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਹ -2 ਤੋਂ +2 ਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ l2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ l ਹਮੇਸ਼ਾ n ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ n will be 3, done। now come on to question number 13। so what are they trying to say is, modify the following set of quantum numbers, making as few changes as possible to make an acceptable set of values। so देखो बच्चे, so question number 13 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ बच्चे कि n अपने पास 2 है, l is equal to -2 है, m is equal to -2 है and s is equal to -half है। फाइन। वो कहते कि इस दे विच मतलब वो कह रहे हैं कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो जिहड़ियां गलतियां मैं तुहानू वैसे ही दिख रही हैं, आपां कह सकते हैं l तक कदे भी माइनस प्लस हुंदा ही नहीं, आपां सिंपली लिखते हैं 0 1 2 3। n है जो वो l तो मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा हुंदा है। अगर l 2 है तो मिनिमम 3 4 कुछ होएगा, ठीक है। सो मीन्स ये सेट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हुण आपां इहदे विच कुछ चेंजेस करनी है जिहदे नाल यह एक्सेप्टेबल बन जाए। तो देखो कितना इजी है, अगर m -2 है तो l कितना हो गया? 2। सो मैं इन्हें एक्सेप्टेबल सेट बनाने लई मैं की कीता, s ए एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, m इज इक्वल टू -2 पॉसिबल है, तो मैं l नू 2 कर लिया। l का 2 हो सकता है। सो अगर l 2 कर लिया तो मैं n नू कर लिया 3, हुणे एक्सेप्टेबल है। क्योंकि देखो जो n 3 होएगा तो 3s 3p 3d 3d ਲਈ l is equal to 2, l घट होना चाहिए है। अगर l 2 है तो ये कितना होगा? -2 तो लेके +2 तक। सो -2 विच हैगा, हुण -2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हैगा, डन, ठीक है। सो दिस बिकम्स एन एक्सेप्टेबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। यह वाला क्वांटम नंबर का सेट बचे तो पॉसिबल ही नहीं है, डन। नाउ सो देखो बच्चे इदा के क्वेश्चन आते हैं कि मतलब सोनू क्वांटम नंबर का सैट दिता हुंदा है, मैं उहदा एक क्वेश्चन होर करवाना है कि इहदे विचों किहड़ा पॉसिबल है किहड़ा नहीं पॉसिबल है। जिहड़ा पॉसिबल है वो तो ठीक है, जिहड़ा नहीं पॉसिबल वो क्यों नहीं पॉसिबल, मैं सोनू हुणे करवाना है। कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर
15 14 ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ हैं, पहला 15 ਤੇ आ जाओ, वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। सो देखो So question number 15, the first A part, n is equal to 0, L is equal to 0, M is equal to 0, S is equal to plus half। तो बच्चे हुन A सेट पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि n का 1 तो स्टार्ट होता है, n is equal to 1 2 3 4। सो आप इत्थे लिखांगे कि दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n is always greater than 0। So n is 1 2 3 4 and so on। B पार्ट ते आओ बच्चे, कम ऑन टू B पार्ट। चलो मैं इसी नू इरेज करके है ना करेक्ट करवा लेना सुनो, मतलब बार बार लिखने की बजाय। सो कम ऑन टू बी पार्ट नाउ। सो बी पार्ट दे विच आपां नूं गिवन है बच्चे कि n is equal to 1, L is equal to 0, M is equal to 0 and S is equal to minus half। हुण बच्चे ये क्वांटम नंबर्स दा सेट पॉसिबल है, क्योंकि पहले शैल दे विच एक सब शैल हुंदा है 1s, ओदे लई L is equal to 0, ओदे विच एक ऑर्बिटल M is equal to 0 एंड ओदे विच दो इलेक्ट्रॉन्स, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, एक माइनस हाफ। डन, इजी। नाउ कम ऑन टू सी पार्ट। सो सी पार्ट दे विच आपां नूं गिवन है कि n is equal to 1, L is equal to 1, M is equal to 0 and S is equal to plus half। तो आप अगेन लिखांगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि n ते L बराबर कदे हो ही नहीं सकते, n is always greater than L। हो गया बच्चे। नाउ come on to the D part। So come on to D part बच्चे। n is equal to 1, L is equal to 0, M is equal to plus 1 and S is equal to plus half। So ये पॉसिबल है? अगेन नहीं पॉसिबल। क्यों? पहले शेल च 1s ले L is equal to 0। तब बच्चे जो L is equal to 0 है तो M भी कितना होएगा 0, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होएगा। ठीक है, अगर L 0 है तो M कितना होता है माइनस L तो प्लस L, तो L is equal to 0, M भी कितना होना चाहिए 0। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कम ऑन टू E पार्ट। सो N is equal to 2, L is equal to 2, M is 0, S is minus half। अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि n ते L कदे भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, नाउ कम ऑन टू, चलो F पार्ट तुसी खुद मैनेज करियो, G ते आने आपां। सो n is equal to 2, L is equal to 1, M is equal to 0, S is equal to minus half। तब बच्चे देखो, अगर n 2 है तो अपने को दो सबशेल्स पॉसिबल है, 2s एंड 2p। 2s ਲਈ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਇਹਦੇ ਲਈ 1, ਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ l 1 ਹੈ ਤਾਂ m ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ m ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 0, ਇੱਥੇ -1 0 +1, ਸੋ ਪੋਸੀਬਲ दोनों केस ਚ। ਇੱਥੇ भी पॉसिबल है, ਇੱਥੇ भी पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन्स अद्धे की होंगे प्लस हाफ, अद्धे की होंगे माइनस हाफ, सो ये भी पॉसिबल है। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, कि अपन गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है या नहीं है बच्चे। ठीक है ना। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। वापस आ जाओ बच्चे, 15 था अपन ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 सेज what are the values of L and M for n is equal to 3? So question number 14 says if n is equal to 3 then give the values of L and M। तो बच्चे n is equal to 3 है, ठीक है, तो अपने को तीन सबशेल्स हो गए 3s 3p 3d। सो L दिया कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो गया 0,
1 and 2। देखो ना 3s 3p 3d 3s ਲਈ 0 3p ਲਈ 1 3d ਲਈ 2। ਨਾਓ m ਇਹ ਅਗਰ 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 0 1 ਲਈ -1 0 +1 2 ਲਈ -2 -1 0 +1 +2 done। So these are the possible values of L and M for अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्पिन क्वांटम नंबर भी पूछा ਹੁੰਦਾ S ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ +½ और -½ done I hope। हाँ जी बच्चे, so this is the type of questions that can be asked on the basis of quantum numbers बच्चे, ठीक है। so मैं इसਦੇ बहुत सारे questions 15 questions ਤੁਹਾਨੂੰ solve ਕਰਵਾਤੇ हैं। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਪੀ 'ਚ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੀਅਰਲੀ 14-15 ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਲੈਸਰ ਬਾਈ 1 or 2 ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬਾਈ 1 or 2 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 14 to 15 ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, उन्होंने भी प्रैक्टिस कर लियो बच्चे। क्वांटम नंबर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द फर्दर स्टडिंग ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। आफ्टर द क्वांटम नंबर्स आई थिंक मैनू मैक्सिमम एक होर लेक्चर लगेगा बस इस चैप्टर नू वाइंड अप करन ते, ठीक है। सो आफ्टर दैट सो टुडे इट इज वेडनेसडे, सो आई थिंक थर्सडे नू मैं कंप्लीट कर दांगा and you all will be having a test from this chapter on Saturday, not from the chapter, sorry, from quantum numbers onwards। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। quantum numbers ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ quantum numbers and rules for filling ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਨ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ on Saturday, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ start preparing nicely, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਪਨ ਨਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਸਫਰ ਯੋਰ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਟੌਪਿਕਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਲਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, then ask for the previous topics from me, I'll send you। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, doesn't matter। ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦਾ ਫਰਦਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਕ ਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੇਸ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਗਰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 9-10 ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਉਹ 9-10 ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਵੀ ਕੈਨ ਕਵਰ ਇਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਈਅਰ। ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਕੈਪਟ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਸਟਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ until and unless you start preparing for the test very nicely, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। You never ever get time to complete the pending work। मतलब ठीक है कि अगर कोई ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਪੋਜ਼ ਜੈਨੂਇਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਜੈਨੂਇਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊ ਟੂ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਨੇਜ 3 ਲੈਕਚਰਸ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਇਨ ਅ ਡੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਸਟਡੀing, keep revising, keep yourself fit and fine. Thanks a lot.